Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is your maths lecture and maths lecture of grade 3rd. As you can see here also, that is written on board also, that this is your maths lecture and maths lecture of grade 3rd. And as you all know that we have started chapter number 4, long and short, and in our previous videos we have already completed our chapter number 4, long and short, in maths book. Okay, whatever is given in maths book, that all we have completed. So students, today here we are going to start notebook work. Okay, today here we are going to start notebook work, and you have to listen this carefully, that whatever we will do today, that each and everything you have to do in your maths notebook. Means as we teachers are teaching you in the school, जैसे आप स्कूल में काम करते थे ना बेटा, कि मैम आपको बोर्ड में सारा कराती थी और आप बोर्ड से ही लिख कर देख करके और लिख करके चीज़ें अपने नोटबुक देख करके और समझ करके चीज़ें अपने नोटबुक में लिखते थे. द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर. So as now you all know about long and short, and you all are familiar about the units like centimeter, meter, kilometer. So today I have one exercise for you related to these units. Okay, in units से related मेरे पास एक exercise है. आज हम उस exercise को करेंगे. It is not tough for you because you all are familiar with these things, because we have conducted several activities here. हम कई सारी activities कर चुके हैं, and these all activities are related to measurement only, and the exercise, the question that are written here on board are also related to measurement. So let's start. Let's see what is given here. As you all can see here, that what is written, question number 1, and that is write suitable unit for the following. क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है write suitable unit for the following. You have to write suitable unit for the following. And what are the units? कौन सी units आपको select करनी है? तो उसमें आपका लिखा है सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर. You have to decide after reading these points कि इसमें से किस चीज को हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर्स में, किस चीज को हम मेजर करेंगे मीटर्स में, और किस चीज को हम मेजर करेंगे किलोमीटर्स में. So let's start. This is first one. Okay, A. What is written here? The length of a book. Now you all are familiar about this. You all have seen book or notebook. So imagine कि जो उसकी length होती है वो हम कैसे measure कर सकते हैं, कितनी बड़ी होती है? बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती. We can measure that length with the help of a scale, and whenever we are doing measurement with the help of a scale, it means the unit will come as a centimeter. Yes. So first one, the length of a book. क्या लिखा है? Length of a book. So the length of a book we will measure in centimeters. Yes. So here it will come C and M, centimeters. Okay. Now second one, the height of a building. What is written here? The height of a building. अब एक बिल्डिंग की हाइट कैसे मेजर करेंगे? जस्ट थिंक ओवर इट. जो बिल्डिंग है यू कैन नॉट यूज स्केल फॉर दैट. तो उसके बाद मैंने आपको दिखाया था ना कि वी कैन यूज मेजरिंग टेप और सब अदर इक्विपमेंट्स जिसमें से कि हम लेंथ मेजर कर सकते हैं. तो सेंटीमीटर के बाद अगर हमें कोई बड़ी लेंथ मेजर करनी होगी तो अबाउट विच लेंथ यू नो? मीटर्स. यस. इट मीन्स कि जब हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग मेजर करनी होती है, एट दैट टाइम वी यूज यूनिट मीटर्स. So what will be the answer? The height of a building किसमें मेजर करेंगे? Meters. Okay. So M will be here. Then again third one, the length of your foot. This question also we have done in activity. I have given you activity earlier. I have told you to measure your foot or your parent foot, and you will come to know how much it is of how much length, right? So beta,
जस्ट थिंक कि वो हमने फुट जब मेजर किया था तो हमने कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया था. ऑब्वियसली वी हैव यूज स्केल फॉर दैट. वी हैव यूज स्केल फॉर दैट एंड वी वर नोइंग कि स्केल इतनी लॉन्ग है, इतना लंबा, इतना फुट है हमारा लंबा, तो वो हमारा इजीली किस में आ जा रहा था, स्केल के मेजरमेंट में आ जा रहा था. इट मीन्स द लेंथ ऑफ योर फुट विल बी, बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं होता, so we can use scale for that. It means that the length of your foot we can measure in centimeters. Yes, it will be in centimeters. Now next is there the height of your parent. अब आप अपने पेरेंट की अगर हाइट मेजर करेंगे. Now बेटा listen, this also we have done. ऐसा तो हम कर चुके हैं ना पहले. मैंने आपको बोला कि मेजर हाइट ऑफ योर मदर, हाइट ऑफ योर फादर, हाइट ऑफ योर सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों की. तो देयर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम हाइट मेजर करते हैं. यस, सो द हाइट ऑफ योर पेरेंट टॉल है ना, तो उनकी हाइट किस में मेजर होगी, मीटर्स में मेजर होगी डेफिनेटली. सो द हाइट ऑफ योर पेरेंट विल कम इन मीटर्स. ओके, सो व्हाट वी विल राइट हियर, m. नाउ दिस वन इज the distance of school from your house. अब आपके हाउस से डिस्टेंस स्कूल का कितने में मेजर होगा. सी, मैं जो नियर रहते हैं स्कूल के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. जो मार्केट एरिया में, और अगर उन्हें स्कूल जाना है तो वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस होगा ना. और व्हेनेवर वी हैव टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस, तो हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, किलोमीटर्स. यस, व्हिच यूनिट वी आर यूजिंग, किलोमीटर्स. सो हियर द डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस इज in kilometers it will be. So what we will write, km. So I hope that you all are able to understand this exercise. Let's have revision and you have to do this exercise. So beta, at the time of watching this video, kindly make it pause, and at that time you can see the things and then write in your notebook at that time only. Then you will be able to complete this work. Okay, जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त इस क्वेश्चन को समझने के बाद वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद अपनी नोटबुक में ये वर्क करिए सेम टाइम पे. Then you will able to understand also and you will able to complete your notebook work also. Okay, now let's have revision of this fast and then we will start another question. What is here? हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो क्या था कि राइट सुटेबल यूनिट फॉर द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे और इन पॉइंट्स में हमें सुटेबल यूनिट्स लिखने थे कि कौन से यूनिट्स आएंगे, और जो यूनिट्स हमें यूज करने थे दे आर गिवन सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर. ओके, सो हियर वी हैव स्टार्टेड एंड व्हाट वी फाउंड. Let's start. We have already done. Let's revise it fast. The length of a book. Book की length हम किसे measure करते हैं? The length of a book is measured in centimeters. The height of a building. Height of a building is measured in meters. The length of your foot. The length of your foot is in centimeters. Then the height of your parent. The height of your parent is in meters. And last one, the distance of school from your house is about kilometers. Okay. So I hope that you all have done. Kindly do this work. Okay, and let's start another question. Question number 1 of this chapter we have already done. Okay, and before this question I have already given you one worksheet and I hope that you people have done that. Now it's time to start another thing. See, put question number 2. Convert the following into centimeters. Okay, what is the question?
what I have written here on board. Convert the following into centimeters. तो बेटा अभी तक तो आपने चीजें मेजरमेंट करना सीखा था, लेकिन आज इस क्लास में टुडे इन दिस क्लास वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट्स. ओके, व्हाट वी विल लर्न टुडे? टुडे वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स. यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसके बीच में कन्वर्जन हो रहा है. जो भी हमें यूनिट दी गई होगी हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ड्यूरिंग means not during, in previous videos that I have already explained you that relation between meters and centimeters. मैंने आपको सेंटीमीटर्स और मीटर्स के बीच का रिलेशन बताया है ना. What is the relation between centimeters and meters? Yes, तो हमें उस रिलेशन को यूज करके today we will see how we convert the units. Okay, हम आज ये सीखेंगे कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं. So convert the following into centimeters. First one, let's see first what is given here. Suppose you have 12 meters. Suppose you have one number that is 12 meter. क्या लिखा है यहाँ पे? 12 meter. Okay, first one is 12 meter. Now we have to learn how to convert this 12 मीटर इंटू सेंटीमीटर्स. हमें ये सीखना है कि हम कैसे मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. एंड कन्वर्जन करने से पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था बिटवीन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स, एंड दैट इज, क्या रिलेशन था वो? आई एम राइटिंग इट A, okay, so that you should not be confused with one. Okay, so first one A, 12 meter. Now let's see what is that relation between meter and centimeter. 1 meter is equals to, what was that? 100 centimeter. क्या था रिलेशन? 1 meter is equals to 100 centimeter. क्या रिलेशन होता है मीटर और सेंटीमीटर के बीच में? कि 1 meter is equals to 100 centimeter. अब बेटा हमें जो मीटर दिया है, क्या दिया है? 12 मीटर दिया है. एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस 12 मीटर इनटू सेंटीमीटर. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट इज सो सिंपल, नो नीड टू वरी, जस्ट फोकस हियर. 1 मीटर की जगह पे मैं क्या लिख दूं? आई कैन राइट 12 मीटर बिकॉज इन्होंने 12 मीटर दिया है हमें. ओके, सो आई कैन राइट हियर 12 मीटर. 12 मीटर. नाउ 1 मीटर की जगह पे तो मैंने 12 मीटर लिख दिया. अब 100 सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिखूंगी? 100 सेंटीमीटर की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? 12 इंटू 100. क्या लिख दूंगी? 12 इंटू 100 सेंटीमीटर. क्या लिख दूंगी? 12 इंटू 100 सेंटीमीटर. क्या किया मैंने? 1 मीटर जब 100 सेंटीमीटर होता है तो 12 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? तो देखिए 12 तो 12 लिख दिया. मीटर कितना था? मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर था ना, तो मीटर के प्लेस में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? 100 सेंटीमीटर. देखिए 12 मीटर इज इक्वल्स टू 12 को 12 लिख दिया. मीटर की जगह पे क्या लिख दिया? 100 सेंटीमीटर. और मीटर की जगह पे मैंने 100 सेंटीमीटर क्यों लिखा? वाई आई हैव रिटन लाइक दिस? बिकॉज वी नो द रिलेशन दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. क्योंकि हमें ये रिलेशन पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने इसे इस तरीके से लिख दिया. 12 मीटर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 100 सेंटीमीटर. राइट. नाउ अब हमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सी, दिस इज 12 इंटू 100. राइट नाउ 12 इंटू 100 इज सिंपली 1200 सेंटीमीटर. सी, अभी 1200 सेंटीमीटर कैसे आया? 12 इंटू 100 इज अवर 1200 सेंटीमीटर. क्या हो गया? 1200 सेंटीमीटर हो गया. लेकिन ये 1200 कैसे हुआ? हमने 12 और 100 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई कैसे हुआ? देख लेते हैं. लेट्स सी व्हाट how we have solved like this. So see, this is 100 and this is 12. Okay, this is 100 and this is 12. ये 100 है और ये क्या है?
12 है, राइट। अब हमें 100 और 12 को मल्टीप्लाई करना है। आपको बेटा ये बात तो पता होगी कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारा क्या आता है, 0 आता है। अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। यस, तो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस 2, अब देखिए 2 डिजिट नंबर है, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 zeros are 0, again 2 zeros are 0 and 2 1 is the 2, 2 into 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 1 2 1 से 2 होता है ना, then 1 into 0 0, 1 into 0 0 and 1 into 1 is 1। अब आप इस सबको प्लस कर दीजिए, what you will get 0, जिसके नीचे क्रॉस होता है वो नंबर ऐसे ही आ जाता है, this is 0, this is 0, this is 2 and this is 1 and what answer we got? We got here 1200। क्या आंसर आ गया हमारा, 1200 आ गया। See, again I am telling you the same thing here, kindly see, इतना आपको समझ में आ गया, this is 1200, okay, so kindly write this first one, this is 1200। Now see again, फिर से मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। See, suppose we have any number like, suppose हमारे पास 10 है, ओके, हमारे पास 10 है और हमें मल्टीप्लाई करना है 10 into 5। सपोज 5 और 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल डू, 5 into 0 is 0 because I told you कोई भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। सो 5 into 0 is 0 और अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। इट मीन्स 5 into 1 is 5, 5 1s are 5, okay, 5 multiplied by 1 is 5, so what we are getting answer here 50। अब इसी तरीके से हमें 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी करना होता है। सेम तरीके से व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू डू 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आल्सो। वो कैसे होगा, नाउ सी अगेन हियर। अब मैंने क्या किया, सेम 10 को अगर मैं 100 लिख देती हूँ, ओके, सपोज दिस सेम 10 को आई हैव मेक इट 100 हियर एंड 100 into 5, ओके, सपोज this is 100 and this is 100 into 5। अगर हम 100 into 5 कर रहे हैं तो क्या होगा, अब देखिए सेम 5 into 0 is 0, 5 zeros are 0, 5 multiplied by 0 is 0 and 5 into 1 is 5, so what is the answer, 500। क्या आ गया, 500। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, so what we are getting 500 here। now see, इसी की जगह पे if I am giving you 2 digit, ये वही था, ये 100 था, पहले की तरह 100 है, मल्टीप्लाई सपोज मैं यहाँ पे आपको 2 लिख देती हूँ, यहाँ पे 3 लिख देती हूँ, क्या बन गया 100 into 23, राइट, क्या बन गया 100 into 23, कुछ नहीं है, इट इज सो सिंपल। आपको मल्टीप्लिकेशन तो आती है बेटा, आपको ये तो पता है हमें मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। सो लेट्स सी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 0 is 0, 3 into 0 is 0, 3 multiplied by 1 is 3 into 1 is 3, राइट, 300 हो गया। अब जब हम सेकेंड डिजिट, ये वाले डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम जो हमारी फर्स्ट डिजिट होती है, जो वंस की प्लेस होती है, वहां पे नीचे क्रॉस लगा देते हैं, ओके, वहां पे क्या कर देते हैं, एक क्रॉस लगा देते हैं। नाउ 2 into 0 is 0, सेम वैसे ही बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन क्या करना है, सिर्फ एक वंस की प्लेस छोड़ के उसके आगे से करेंगे। सो 2 into 0 is 0, 2 into 0 is 0 and 2 into 1 is 2। अब क्या करेंगे इसके बाद, वहां पे तो सिंगल वाले में तो हमारा एक बार में आंसर आ जा रहा था, लेकिन अब हमारे पास तो यहाँ पे दो आंसर्स हो गए। सो नाउ वी हैव टू डू एडिशन। क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। तो जैसे ही हम ऐड करते हैं क्या हो जाता है, 0 जिस भी नंबर के नीचे क्रॉस होता है वो नंबर को हम एज इट इज लिख देते हैं। सो दिस इज 0 ओनली, 0 plus 0 0, 3 plus 0 is 3 and this is 2. So what answer we have got,
2300. But answer we have got 2300. Okay. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. No problem. Again we will solve and again we will able to understand. So kindly do this first one. First one is 12 मीटर. हमें 12 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था. ये करने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने रिलेशन लिखा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. अब जब हमें रिलेशन पता है तो हमने क्या लिखा, वी हैव टू कन्वर्ट 12 मीटर इनटू सेंटीमीटर्स. हमें 12 मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना था. तो मैंने क्या करा, 12 को तो 12 लिख दिया. जो मीटर की जगह थी, मीटर की जगह पे मैंने मीटर ना लिख के क्या लिख दिया, 100 सेंटीमीटर. और मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है. यस. So when we have multiplied this 12 by 100, but we got 1200. What is our answer? 1200, and the unit is centimeter. Okay. Now again we will do second one. Suppose it is 7 centimeter. Now this become very easy for you. Okay. First one I hope you have done. Second one see 7 meter. Suppose आपको दिया है 7 मीटर and now you have to convert this 7 meter into centimeter. अब आपको ये 7 मीटर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे? For that again we will write. Okay, हम फिर से लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? हमें सबसे पहले रिलेशन लिखना है. रिलेशन क्या होता है? रिलेशन हमारा होता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. क्या रिलेशन होता है? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. यस. अच्छा, अगेन वी विल डू हियर ओनली. मैं इसे पूरे को इरेज कर देती हूँ. ओके. नाउ फॉर 7 वी विल डू. दिस इज B1 B एंड दिस इज 7 मीटर. हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं. 7 मीटर के लिए मैंने क्या बोला, रिलेशन लिखेंगे सबसे पहले 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर. अब हमें 7 मीटर कन्वर्ट करना है. ये हमने 7 मीटर्स लिख दिया. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 7 मीटर इनटू सेंटीमीटर्स. तो मैं क्या करूंगी, 7 को तो मैं 7 ही लिख दूंगी. ओके. लेकिन मीटर की प्लेस में मैं क्या कर दूंगी, मीटर की प्लेस में आई विल पुट दिस मल्टीप्लिकेशन साइन एंड देन आई विल राइट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. सो आई विल राइट 100 सेंटीमीटर हियर. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 100 सेंटीमीटर. एंड 7 into 100 is 700 सेंटीमीटर. 7 into 100 कितना हो गया, 700 सेंटीमीटर. अब 7 into 100 700 सेंटीमीटर कैसे हुआ, तो वो आपको आता है. इट इज सो सिंपल. क्या किया हमने, ये हमने 100 लिखा, ये into 7. ठीक है, इस तरीके से किया. Now you know very well when we multiply any number by 0, the answer is 0 only. 7 into 0 is 0, 7 into 0 is 0 and 7 into 1 is 7. So what answer we have got here? 700. Yes, so finally our answer is 700 centimeter. समझ में आ गया बेटा क्या था? कुछ नहीं था. It is so simple. 7 meter दिया था. For 7 meter, first we have written relation here. 1 meter is equals to 100 centimeter. Then we have to convert this 7 meter into centimeters. So what we have done? 7 into, in place of meters, I have written 100 centimeter and it became 7 into 100 is 700 centimeter. Okay? Kindly see this. I hope you can see from here clearly and do the same thing you have to do in notebook. Okay, whatever in today's video, whatever sums I have given, whatever I have explained, each and everything you have to do in your maths notebook. Okay, now let's solve another one. The suppose third one we have is so simple. Okay, suppose we were having another is 3 meter. चलिए हम 3 meter के लिए solve कर लेते हैं. Now it become very easy for you. अब तो आप सबको आ गया होगा. देखते हैं C1 क्या है हमारा, 3 मीटर. हमें क्या दिया है, 3 मीटर दिया है. And we have to convert this 3 meter into centimeter. It's so simple because we know the relation. First we will write relation 1 meter equals to 100 centimeter. Yes. तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, 1 meter is equals to 100 सेंटीमीटर. वेरी गुड. ये हमारा रिलेशन है. इस रिलेशन के
अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व कर रहे हैं। मीटर और सेंटीमीटर के बीच में जो रिलेशन है उसी रिलेशन की वजह से हमारी यूनिट मीटर से सेंटीमीटर में चेंज हो पा रही है। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस 3 मीटर। 3 मीटर को कन्वर्ट करना है बेटा। 3 की जगह पे तो मैंने 3 लिख दिया। ओके, इन प्लेस ऑफ 3 आई हैव रिटन 3, बट इन प्लेस ऑफ मीटर में क्या करूंगी? 100 सेंटीमीटर लिखूंगी। सो 3 into 100 सेंटीमीटर, and when we are solving this what we are getting? 300 सेंटीमीटर। और ये कैसे हुआ? You know very well how this came here. आप सबको पता है कैसे आया? कैसे आया बताइए? We are going to multiply it. क्या है? 100 into 3। हमने क्या किया था? 100 into 3 किया था। तो क्या हुआ था यहाँ पे? 3 into 0 is 0, 3 into 0 is 0, 3 into 1 is 3, and what answer we got? We got here 300. Yes. So this is your third one. 3 meter. 1 meter is equals to 100 centimeter. 3 meter is equals to 3 into 100 centimeter, which is equals to 300 centimeter. Yes. Can you do this? Then we will do a next one. I hope you all are able to understand this. See beta, for maths you have to practice the questions. Until you will not practice, you will not get able to solve. Okay? Now let's do one more. D1. Now suppose I am giving you another one is 12 we have done. Suppose it is 52 meter. Okay, what it is written here? 52 meter. अब 52 मीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ नया नहीं करना है, सेम थिंग। हम मीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिंपली वी विल गेट द आंसर। ओके, सो डी इज 52 मीटर। लेट्स स्टार्ट। वी नो रिलेशन 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 centimeter. Okay, then it is not very good. Let me write properly. 100 centimeter. Then 52 meter equals to 52 meter कितना हो जाएगा? 52 लिखा, 52 into मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो क्या करूंगी? This is 52 into 100 centimeter. And what will be the answer? 52 into 100, that what I am getting? 5200 centimeter. कितना आ गया? 5200 सेंटीमीटर। और 5200 कैसे आया? I know this, मुझे पता है, ये तो मेरे लिए बहुत इजी है। अब आप सबके लिए भी बहुत ज्यादा इजी है। क्या किया हमने? 100 को 52 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या आया हमारा? 2 into 0 0, 2 into 0 0, 2 into 1 2. ओके, 2 multiplied by 1 is 2. सेकेंड लाइन कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्रॉस। क्रॉस के बाद क्या करेंगे? 5 into 0 is 0, 5 into 0 is 0, 5 into 1 is 5. 5 1 से कितना होता है? 5. अब ये दोनों आ गए। अभी तक तो आपके पास सिंगल आंसर था तो आप लिख दे रहे थे। अब आपके पास 2 आंसर्स आ गए तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग? 0 0 2 and 5. And what is the answer? 5200 और 5200 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 5200 और 5200. ओके, so this is our D1. 52 meter is 1 meter equal to 100 centimeter and 52 meter is like this. Okay, so beta, can you do this? And I hope that you all are able to understand this. No need to worry. इसे समझिए and अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है so soon I will take your multiplication class also. Okay, ये करने के बाद अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये वर्क करिए। मैं आपकी मल्टीप्लिकेशन क्लास लूंगी जिसमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी कि हाउ डू वी डू मल्टीप्लाई। We will start from 1 digit, then we will go for 2 digit and then we will end up in 3 digits. Okay,
सो नो नीड टू वरी, हम मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे। बट आपको करना क्या है, आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से करना है। ओके, तो आप ये सारे क्वेश्चंस करिएगा अपनी नोटबुक में, प्लस टेबल्स। सबसे पहले आपको टेबल्स याद करने हैं बेटा। इफ यू आर नॉट लर्निंग टेबल्स प्रॉपरली देन यू विल बी अनेबल टू सॉल्व। इसीलिए मैंने आपको मैथ्स में सबसे पहले टेबल्स करवाए हैं, राइट? So kindly learn that table so that soon we can conduct multiplication class. Okay? So beta, I hope you have enjoyed today's class and you are able to understand that how to do multiplication and how to write the units. Okay? So this we have to do. I hope you have enjoyed this class. For another things we will see that in next class. Thank you and have a nice day ahead.